Praise the Lord and welcome once again this morning. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आज की सुबह आप सबों का स्वागत है। Let's worship the Lord together. आइए हम मिलकर आज के दिन आराधना प्रभु की करें। Amen. आमेन। This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है We will rejoice and be glad. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। Maybe circumstances might not have been good for you और the past week. संभव है जो बीता सप्ताह में परिस्थितियां आपके लिए बहुत सुगम नहीं थी, Never mind. लेकिन हम उसकी चिंता ना करें। Even as we worship God, जैसे ही हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, something good is going to happen. कुछ आपके लिए अच्छा प्रभु करेगा। The joy of the Lord is our strength. ओ यहोवा की शादमानी मेरी कुव्वत है। That's what the devil wants to rob us of. और यही वो चीज है जिस आनंद से शैतान हमें लूटना चाहता है। Choose to rejoice in God. प्रभु में आनंदित होना चुन ले। Hallelujah. हालेलुया। We want everybody to be happy. हम चाहते कि आप सभी लोग खुश रहें। Amen. आमेन। The children can also join and sing with us. बच्चे लोग भी इस गीत में हमारे साथ शामिल होकर गा सकते हैं। Amen. आमेन। We want everybody to be happy. We want everybody to be glad. We want everybody to be happy in the Lord, and we don't want anybody sad. We want everybody to be happy. We want everybody to be glad. We want everybody to be happy in the Lord, and we don't want anybody sad. I'm glad I belong to Jesus. I'm glad I belong to Jesus. I'm glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. 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 Hallelujah, praise the Lord. मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ। मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ। हालेलुया, हुआ ज़ाद, आमेन, आमेन। 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 हालेलुया, हुआ ज़ाद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Give him praise and glory this morning. प्रभु को स्तुति करें। आज सुबह प्रभु की महिमा प्रभु को दें।
Clap your hands, all ye people. ओ बाइबल जैसे कहती सारे लोगों ताली बजाकर उसकी स्तुति करो। Shout unto the Lord with the voice of triumph. परमेश्वर की रे ऊंची ललकार की आवाज के साथ पुकारो। What a mighty God we serve. कैसे सामर्थी परमेश्वर की आज हम सेवा करते हैं। Angels bow before him. जिसके सामने स्वर्गदूत दंडवत करते हैं। Heaven and earth adore him. स्वर्ग और पृथ्वी उसकी उपासना करती है। What a mighty God we serve. कैसा सामर्थी प्रभु की हम सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sing it to him. आइए उसे गाएं। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched hand. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. For nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. No, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Sing it. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Hallelujah. हालेलुया। It might be your sickness, वो चाहे वो आपकी बीमारी क्यों ना हो and you wonder, और आप उसको लेकर ये आश्चर्य करते हैं what is going to happen to me? कि मेरे साथ में इसे लेकर क्या होगा। Look unto your God. अपने परमेश्वर की ओर आंख उठाओ। What a mighty God he is. कैसा सामर्थी वो प्रभु And है। he says, और जब वो कहता है is there anything too hard for me? कि क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है। Nothing. कुछ भी नहीं। No, nothing कुछ भी is too नहीं। difficult. मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। Whether it be cancer, kidney, चाहे whatever वो it might be. कैंसर का, चाहे वो किडनी का, कोई भी रोग क्यों ना हो। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is able. परमेश्वर हमारा सामर्थी योग्य He's है। able, he's able. वो योग्य है। I know he's able. मुझको मालूम है कि वो योग्य है। I know my God is able to मैं carry जानता me हूँ through. मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के योग्य है। Hallelujah. Thank you, Lord. Sing it. उसे गाएं। Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee.
Clap your hands, worship God together. ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो या नई हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। वो तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद
कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। My one defense, my righteousness, oh Lord, how I need you. This is our prayer this morning. हमारी प्रार्थना आज सुबह प्रभु यही है, Abide with us. प्रभु तू हमारे साथ में वास कर, For without you, we cannot do anything. क्योंकि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। Which say like Moses who said, हम मूसा के समान आज तुझसे प्रार्थना करते हैं, if your presence shall not go with me, take me not hence. प्रभु यदि तेरी उपस्थिति आगे हमारे संग ना जाए तो हमें भी आगे मत ले जा। Take us through to the end of time. समय के अंत तक प्रभु तू हमें लेकर चल, हम मांगते हैं। Hold our hands in your hand. हमारे हाथों को प्रभु तू अपने हाथों में लेकर चल। Lift us up when we fall. प्रभु तू हमें उठा जब कभी हम गिर जाते हैं। Wash us when we call. प्रभु हमें शुद्ध कर दे जब कभी हम तुझको आवाज देते स्वामी। Thank you for helping us through life's journey. प्रभु जीवन की इतनी तक की यात्रा में हमारा साथ तू दिया, हम तुझको धन्यवाद कहते हैं। Now our prayer shall be this. हमारी प्रार्थना प्रभु तुझसे यही होगी Keep us faithful till the end of time. कि हमें समय के आखिरी वक्त तक विश्वास योग्य बना कर रखना। Bless your precious people. अपने इन बहुमूल्य लोगों को तू आशीष दे, Lord, who are so eagerly waiting to hear the word. जो तेरे वचन से सुनने के लिए इतनी उत्सुकता के साथ में इंतजार कर। Holy Ghost, break the word of life. हे पवित्र आत्मा, जीवन की उस रोटी को उनके लिए तोड़ दे। Feed us with bread of heaven. हमें स्वर्ग की रोटी में से खिला दे। Satisfy our longing soul. हमारी उस चाहत भरे हृदय को तू तृप्त कर दे। Bless us in Jesus' name. हम सबों को आशीष दे, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord and welcome once again for this morning service. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से सुबह की आराधना में आप सबों का स्वागत है। I trust that you had a good week. और मैं विश्वास करता हूँ कि बीता सप्ताह आपका अच्छा बीता होगा। God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है, Brought us to another day. एक और नए दिन में हमें लेकर आया है, We can remember His goodness and mercy towards us. जिसमें हम परमेश्वर की करुणा और उसकी भलाई को याद कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And let's look to the Lord in a word of prayer and ask His blessing upon us. और आइए इस समय परमेश्वर की आशीषों को मांगने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, in the matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी और महिमामयी नाम में, that precious and powerful name of Christ, वो बहुमूल्य और यीशु मसीह का सामर्थी नाम, we can enter into your holy presence. जिस नाम से तेरी हुजूरी में हम आ सकते। Thank you, Lord, that veil has been removed. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने उस पर्दे को हटाया है, We can come into your presence and call you Abba Father. कि हम तेरी उपस्थिति में आकर तुझको अब्बा पिता पुकार सकते। What a privilege it is.
क्या ही सौभाग्य है प्रभु to know you, तुझको जानना, to love you, तुझसे प्रेम करना and to be able to talk to you, Lord. और तुझसे बात करने का ये सौभाग्य है। No wonder Simon Peter said, कोई आश्चर्य नहीं, शमौन पतरस ने कहा, to whom shall we go? प्रभु तुझे छोड़ हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास हैं। Satisfy our souls this day आज के दिन हमारे प्राण को तृप्त कर with the bread of heaven. स्वर्ग की उस रोटी से, Break thou the bread of life. जीवन की रोटी हमारे लिए तोड़ दे प्रभु। Feed our hungry souls, I ask you. हमारे भूखे प्राण को खिला, मैं मांगता Give us हूं। utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Give us listening ears and receptive hearts. हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले दिल दे। Oh Holy Ghost, we हे pray. पवित्र आत्मा हम मांगते, Help us, we pray. हमारी सहायता कर, हम मांगते In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our Bibles to the 4th chapter of the Gospel of Luke. आइए अपने बाइबलों को खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। We are reading from verse 14 onwards. और उसकी 14 आयत से आगे को हम देख रहे हैं। And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out of fame of him through all the regions round about. And he taught in the synagogues, being glorified of all. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it is written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। To preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book and gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened upon him. और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. And all that bare witness and wondered at the gracious word which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? तब वह उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? Hallelujah. हालेलुया। You remember this passage that the scripture says that Jesus, being full of the Holy Ghost, was led of the Spirit into the wilderness. पवित्र आत्मा की इस भाग को हम स्मरण करते हैं जो कहता है कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा।
You remember that after he came out of the waters of आपको baptism, याद होगा कि पानी के बपतिस्मे से जब यीशु मसीह बाहर निकला, the Spirit of God descended upon him परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी in the form of a dove एक कबूतर की नाई, and rested on him. और उस पर आकर ठहर गई। And the scripture says, और वचन कहती है, and the Spirit led him into the wilderness आत्मा उसे ब्याबान में जंगल में ले गया to be tempted of the devil. कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। 40 days 40 दिन and 40 nights. 40 रात, This is over a month. और ये 1 महीने से भी ऊपर का समय Tested by the devil. शैतान से परीक्षा होने के लिए। And the scripture again says वचन फिर से कहती है that he returned in the power of the Holy Spirit. कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा। He was led of the Spirit. वो आत्मा के द्वारा ले जाया गया था Now he returns और अब लौटता भी है in the power of the Holy Ghost. उसी आत्मा की सामर्थ्य में होकर। And the Bible says, और बाइबल कहती है and the fame of him went all throughout the region round about. और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। And he taught in the synagogue, being glorified of all. और वो उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। That's what happens when the Holy Ghost comes upon. ये तब होता है जब पवित्र आत्मा आता है। Jesus himself waited, यीशु मसीह स्वयं रुका रहा, though he was the Son of God, यद्यपि वो परमेश्वर का बेटा था, because he was in this earth in his human body. क्योंकि वो इस पृथ्वी पर एक मानव शरीर में था। He waited for the Holy Ghost to be upon him, the anointing. वो इंतजार करता रहा पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। There is a different offices God has given to God has for himself. परमेश्वर के पास में अलग अलग किस्म के कार्य हैं। And the office of the Father, पिता का कार्य, his work is different. उसका कार्य ही अलग है। The office of the Son, पुत्र का जो कार्य है it is different. वो बिल्कुल अलग है। The work of the Holy Ghost पवित्र आत्मा का कार्य is different. वो बिल्कुल अलग है। But they all are unified in one. परंतु वो सब एक में है। Amen. Amen. They don't differentiate. वो अलग अलग हम उनको नहीं कर सकते। Maybe a manifestation of that kind may be there. और हो सकते इस प्रकार का एक प्रगटीकरण वहां पर दिखाई दे। The scripture says वचन कहती है he returned in the Spirit, कि वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा। in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। That's all what we need. आज हमें इसी की जरूरत है। There was no advertisement. उन दिनों में कोई विज्ञापन नहीं There was no था। advertisement for John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार के लिए विज्ञापन नहीं था। But the Bible says बाइबल लेकिन कहती है crowds followed him कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। from Jerusalem to Judea. यरूशलेम से लोग, यहूदा से लोग। Why? क्यों ऐसा? Because the Holy Ghost was upon him. क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा था। Or when there is fire, people will get attracted to the fire. और जहाँ कहीं भी आग होगा, लोग उस आग के प्रति आकर्षित हो जाते। Their attention will be drawn. उनका ध्यान उस आग की तरफ खिंच जाता है। And John says like this, और यूहन्ना इस प्रकार से बोलता, the one who comes after me, जो मेरे बाद आने वाला है, he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। So we find here हम इसलिए यहाँ पर पाते हैं the beginning of the ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हो रही है। And he began his ministry by teaching people. और वो उसकी शुरुआत लोगों को उपदेश देने से कर रहा है। The scripture says वचन कहती, earlier he had sent his disciples to preach the kingdom of God. इसके पहले उसने चेलों को परमेश्वर के राज का प्रचार करने भेजा था। And they went and preached saying, repent for the kingdom of God is at hand. वे लोग गए और लोगों को बताए कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। Somehow God wants to reveal his will to the people. परमेश्वर किसी प्रकार से अपनी मर्जी को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। Because devil has warped the mind of man. क्योंकि शैतान ने लोगों के दिमाग को उसने बिगाड़ रखा है। Man doesn't think about God as he should think. और मनुष्य परमेश्वर के विषय में वैसा आज नहीं सोचता जैसे उसको वास्तव में सोचना The चाहिए। God of this world has blinded their eyes. जो इस जगत के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधी कर दिया So है। what could open their eyes is the preaching of the gospel. कौन सी चीज उनके आंख को खोल सकती है? वो है
वचन का, सुसमाचार का प्रचार, hearing of the word. वचन के सुनने से। That's why devil doesn't dislikes the preaching of the gospel. और इसीलिए शैतान सुसमाचार के प्रचार से नफरत करता है। Because by the preaching of the gospel we know the heart of God. क्योंकि हम वचन के प्रचार से परमेश्वर की हृदय को जान It लेते is हैं। the will of God. क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। Amen. Amen. The angel sang and said, स्वर्गदूतों ने गाकर कहा था, glory to God in the highest, वो स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, peace on earth. पृथ्वी पर शांति हो। Hallelujah. Hallelujah. This was God's will. ये परमेश्वर की मर्जी The थी। angel could say though that much and no further. वो स्वर्गदूत तो उतना बोल सकता था, उसके आगे नहीं। That he has committed all this gospel into the hands of his children. क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार को अपनी मनुष्य संतानों के हाथ में दिया है, So that they could give the first 10 experience of what God has done for their lives. ताकि वो अपने जीवन के लिए जो प्रभु ने किया है उसका अनुभव कर सके। He says he began to teach in the synagogues, being glorified of all. और कहता है वो आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। His fame just spread. उसका प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। Hallelujah. हालेलुया। He is teaching them, वो उनको शिक्षा दे रहा है, and they were just drinking from what his words were coming out. और जो वो उसके मुंह से वचन निकलते थे उसको लोग ऐसे जैसे कि मानो पी रहे हों। Their soul was so thirsty, उनका प्राण इतना सूखा था, so hungry, इतना भूखा था, and he is being satisfied. वो आज तृप्त हो रहा था। He is being glorified by all. वो सब के द्वारा महिमा उसे मिल रही थी। He came to his own city Nazareth, वो अपने ही नगर नासरत में आया, where he was brought up. याद रखे जहां पर वो पाला पोसा गया And था। as his custom was, he took up the book. लिखा जैसे उसकी रीति थी, उसने सब्त के दिन किताब पढ़ने लिया, He stood up to read, खड़ा हो गया उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। meaning that he was following that custom from long time. मतलब वो आराधनालय जाने के रीति को लंबे समय से वो पालन करता रहा है। The scripture says that was his custom, क्योंकि वचन में लिखा है अपनी रीति के अनुसार, ये उसका रीति था। meaning he devoted himself to the synagogue. वो अपने आप को सब आराधनालय में समर्पित किया He would था। often say, my house shall be called the house of prayer. और वो कहता था मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। This is God's house. ये परमेश्वर का घर And I है must be प्रियो। there about my father's business. और मुझको अपने पिता के कार्य में उसके भवन में होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So he says here, वो यहाँ कहता है, you read this over here. यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, And he came to Nazareth, फिर वह नासरत में आया where he was brought up. जहाँ पाला पोसा गया था। And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। People are all gathered. लोग सब वहाँ एकत्रित थे And they gave him the book of Isaiah. और लोगों ने उसको यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़ने को दी। The minister in charge gave him. और जो वहाँ पर व्यक्ति प्रभारी था उसने इस किताब को यीशु को दिया। And Jesus picked up the book यीशु मसीह ने उस पुस्तक को लेकर and he read. उसने खोल कर पढ़ने लगा। 18th verse we read. और 18 आयत में हम देखते उसने क्या The पढ़ा। Spirit of the Lord is upon me, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया He है। sent me to heal the brokenhearted, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का to प्रचार preach करूं। deliverance to the captive, बंदियों को छुटकारे का मैं प्रचार करूं। recovering of sight to the blind, अंधों को दृष्टि देने का to set at liberty all that are bruised, और कुचले हुओं को छुड़ाने का प्रचार करूं। and to preach the acceptable year of the Lord. और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। Amen. आमेन। He closed the book and gave it again to the minister. इतना पढ़कर उसने किताब बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। And all eyes were fixed on him. और आराधनालय में बैठे सबकी आंखें उस पर टिकी थी। That's what the anointing word can do. अभिषेक ऐसा कार्य करता है। All eyes were fixed on him. सारी आंखें उस पर टिकी थी। And they said, और उन लोगों ने कहा, what gracious words have come out of his mouth. ये कैसे अनुग्रह के वचन इसके मुंह से निकलते हैं। Others also read it before. दूसरे लोगों ने भी पहले इसे पढ़ा है। But now it seems to make sense. परंतु आज ऐसा लगता है इन वचनों का कुछ अर्थ निकल रहा है। Now it seems it touched the heart.
अब ऐसा लग रहा है कि आज इस वचन ने छुआ है। Now it seems the darkness is lifted. अब ऐसा लग रहा है कि अंधकार हट रहा है। Now we begin to see what God desires. आज ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें पता चल रहा है। Now we know God has not left us. अब हमको ये पता चल रहा है कि परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। He has a purpose. उसके पास एक उद्देश्य He है। has a plan. उसके पास एक योजना है And that He's revealed it in His word. जो उसने अपने वचन में बताया है। Gee, God, Bible says that God was in Christ reconciling the world unto Himself. और बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह को होकर जगत को अपने साथ मेल कराता The है। anointing of the Holy Ghost was with a purpose. पवित्र आत्मा का अभिषेक के पीछे एक उद्देश्य था। God always anointed people through the ages. परमेश्वर ने पिछले युगों से लोगों का आत्मा से अभिषेक किया है Because He was concerned about His creation. क्योंकि उसे अपनी सृष्टि के बारे में फिक्र था। The one part of creation that suffers a lot is the human being. सृष्टि का एक भाग जो सबसे अधिक पीड़ा उठाया वो है मानव जाति। The birds fly freely in the air. आकाश में पक्षी आजादी के साथ उड़ते The हैं। animals roam freely in the jungle. जानवर जंगल में आजादी के साथ विचरते हैं। Everything in nature seems to be in freedom. ऐसे लगता है प्रकृति की सब चीज आजाद है। But man, from the day he's born, किंतु मनुष्य जिस दिन से वो जन्म लेता है it seems that he's gets entangled with so many things. ऐसा लगता है वो कितनी चीजों के बीच में फंसा हुआ होता है। He wants to please God. वो परमेश्वर को इस बीच प्रसन्न करना चाहता है। He's pulled by the world, संसार दूसरी तरफ उसे the खींचती pressures है। of life, जीवन की चिंताएं उसे खींचती हैं। to bring bread to the house, वो घर में रोटी लाने के लिए यत्न करता, to see the children settle, अपने बच्चों को कहीं स्थापित होने देखना to have a shelter over his head, अपने सर के ऊपर एक शरण बनाने की योजना करता, and food for his stomach. अपनी पेट के लिए भोजन तैयार करता है। And besides all this, परंतु इन सारे कामों के बीच में there are other things that come upon him. वहां पर दूसरी भी चीजें जो उसके ऊपर में आ जाती है। Sometimes it is sickness, कभी कभी बीमारी उसे आप पकड़ती sometimes it है। is distress of soul, कभी कभी प्राण निराश हो जाता है। sometimes he thinks to end up his life कभी कभी ये मनुष्य अपने जीवन से हाथ धोना चाहता है because he doesn't know the purpose of God. क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य को जो उसके लिए है नहीं जान So पाता। every generation God raised up somebody, इसलिए हर पीढ़ी के अंदर परमेश्वर ने अपने आदमी को खड़ा किया। someone who will speak for him, कोई ऐसा जन जो उसके वचन को बोले, someone who will speak his heart, कोई ऐसा मनुष्य जो उसकी हृदय की बात लोगों को बताए। and only one who can speak his heart is the man who has the Spirit of और God. एक ही जन परमेश्वर की हृदय की बात बोल सकता जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। The letter of the word kills, वो जो वचन के जो अक्षर है वो तो मारते but the हैं, Spirit gives life. परंतु आत्मा जिलाता है। Jesus said, यीशु ने the words I कहा speak to you, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ they are spirit वे आत्मा and they are है life. और वे जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। I've come मैं इसलिए आया that you might have life. कि तुम जीवन पाओ। तुम जीवन You पाओ। will have life. तुम जीवन पाओ। Hallelujah. Hallelujah. Not just eking life. और जीवन घसीटते हुए चलने के लिए नहीं, No. नहीं, Abundant life. परंतु जीवन बहुतायत का, Fruitful life. जीवन फलवंत जीवन। Then what is that chokes it all? फिर ऐसी कौन सी बात है जो इन सब को रोक देती है? How can I be delivered? मैं कैसे इनसे मुक्ति पा सकता हूँ? Hallelujah. Hallelujah. God will raise up deliverers. परमेश्वर छुटकारा देने वालों को उठाता रहा है। Hallelujah. हालेलुया। They came with anointing of the Holy वे Ghost. लोग तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से ऐसे लोग उठे And they delivered Israel. और उन्होंने इजरायली लोगों को बंधुआई से छुड़ा लिया। They delivered people. उन्होंने लोगों को आजाद किया। Hallelujah. हालेलुया। This is what यही the heart of God is. परमेश्वर का हृदय हमारे लिए है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा the Spirit परमेश्वर की आत्मा, of the Lord प्रभु की आत्मा is upon me. मुझ पर है। Hallelujah. 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 What more you want? और हमें इससे बढ़कर क्या You चाहिए? cannot have anything better than the Holy Ghost. ओ पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। Just wait a minute and think. जरा एक क्षण रुक कर सोचें। It's not some man's spirit,
some weak spirit. ये कोई मनुष्य की, कोई दुर्बल सी आत्मा की बात नहीं कर This is the रहे। same spirit ये वही आत्मा है which was hovering over the earth when it was in darkness. जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी तब उसके ऊपर मंडरा रही थी। So powerful, so glorious. ये आत्मा इतनी सामर्थ्य, इतनी महिमामयी है। And when God said, और जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी पर बोला, let light be, वहां पर ज्योति हो, and there was light. और ज्योति हो गया। The spirit and the word वचन और आत्मा मिला combined together it brought life. और मिलकर जीवन को उत्पन्न कर दिया। That is why इसीलिए तो they were wondering at the gracious word which came from Jesus' वे mouth. यीशु के मुख से निकलने वाले अनुग्रहकारी वचन से अचंभित थे। The spirit of God is upon me. जब उसने Oh, कहा hallelujah. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। Oh, glory. प्रभु की महिमा हो। You know the anointing. आप जानते हो उस अभिषेक को, Anointing वो अभिषेक आत्मा will का give us the ability. हमें योग्यता देता है। Anointing will give us the strength. आत्मा का अभिषेक बल देता है। Anointing will separate us वो हमें अलग करता है for His purpose. अपने उद्देश्य को पूरा करने। Anointing which give us, enable us to do the will of God. अभिषेक परमेश्वर की मर्जी पूरा करने की सामर्थ्य हमें देता है। Anointing will empower us. हमें अभिषेक जो है सामर्थ्य से भरता है। You shall receive power तुम सामर्थ्य को पाओगे after the Holy Ghost has come upon जब you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। Empowers you. वो तुम्हें ऐसी सामर्थ्य से भरता है। Anointing breaks the yoke of the enemy. और अभिषेक दुश्मन के जुए को तोड़ डालता है। Anointing enlightens our eyes. अभिषेक हमारे जीवन को वो प्रज्वलित कर देता है। Anointing teaches us अभिषेक हमें सिखाता है the will of God. परमेश्वर की मर्जी को सिखाता। So many things. कितनी बातें, And one of them और उनमें से एक is to minister to people. लोगों की सेवा करना है। Amen. आमेन। It's not for us to have anointing and sit. हमारे लिए अभिषेक पाकर बैठने के लिए नहीं है। God raised up people to minister to them. परमेश्वर ने लोगों को समय समय पर उठाया कि वे उसकी सेवा टहल करें। The anointing of God is upon me. परमेश्वर प्रभु का आत्मा मुझ पर है। He has anointed me. उसने मेरा अभिषेक किया है। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Jesus is the one who anoints you. यीशु मसीह ही है जो आज हमें अभिषेक करता है। Amen. आमेन। No man. कोई मनुष्य नहीं। Man may lay hands and pray for you. मनुष्य हाथ रखकर आपके ऊपर प्रार्थना कर सकता है। You might receive the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं। But it's not the man. परंतु वो मनुष्य की ओर से नहीं मिला God है। is using him only as a channel. परमेश्वर एक स्रोत के रूप में केवल एक मनुष्य को इस्तेमाल करता है। Jesus is the baptizer in the Holy Ghost and in परंतु fire. आपको बपतिस्मा देने वाला आग से और पवित्र आत्मा से वो प्रभु है। The anointing breaks the yoke of the enemy. और वो अभिषेक दुश्मन के जुए को तोड़ डालता है। You know why? आप जानते क्यों? The devil is in the business of enslaving people. क्योंकि शैतान आज लोगों को गुलाम बनाने के काम में लगा है। Bringing them into captivity. उनको बंधुआई में लेकर आता है। Bringing men's souls into captivity. मनुष्य के प्राण को बंधुआई में लेकर आता है So that he can rule over them. ताकि वो उनके ऊपर में हुकूमत या राज कर सके। He has different methods and plans. उसके पास में अलग अलग तरीके और योजना है। One of them is deception, उनमें से एक तरीका है भ्रमित करना, temptation, परीक्षा में लोगों को डालना, ensnare them. लोगों को फंदे में फंसा देना। Once they are in his cage, एक बार जब लोग शैतान के उस पिंजड़े में फंस जाएं, he won't let them go. वो उनको जाने नहीं देता है। A captive, एक जो गुलाम या बंधुआई में जो है, because Jesus said here यीशु मसीह ने यहाँ कहा to set the captives free. मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को आजाद करूं, छुड़ाऊं। Isaiah 61st chapter, same thing is mentioned. यशाया 61 अध्याय में यही चीज लिखी है। This is what Jesus was reading. उसी 61 अध्याय को यीशु मसीह पढ़ रहे थे। A captive is a person who has taken a prisoner. एक बंदी ऐसा मनुष्य है जिसे कैदी के रूप में बांध लिया गया है। Yesterday I was just watching a little bit of the hijacking at NTB. और कल के दिन मैं एनटीबी में जो हाईजैक हुआ था, अपहरण हुआ था जहाज का, उसके विषय में मैं देख रहा था। The others were left except for the Jews.
दूसरे सारे यात्रियों को उन्होंने जाने दिया सिवाय यहूदी यात्रियों के। Man likes to take people captives, मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाना चाहता है, put them in fear, उनको डरा के रखना चाहता है, rule over them. डरा के उनके ऊपर राज करना चाहता है। If they have their way, they will kill them. यदि उनका मर्जी चले तो वो उनको मारना भी चाहता है। And what a deliverance it was. लेकिन वो छुटकारा कैसे आया? Few men कुछ नौजवान लोग were used to bring these people out. वे इन लोगों को वहां से छुड़ाने में कामयाब हो गए। And what joy it was. क्या ही खुशी का वो पल था When they came back with all the Israelites back to Israel. जब उन्होंने उन सारे इजरायलियों को लेकर इजराइल वापस लौट कर आए। 5,000 kilometers going and 5,000 coming back. 5,000 किलोमीटर की यात्रा जाना और आना। Bring your own people back. अपने लोगों को घर वापस लेकर आना। If man has that desire, यदि एक मनुष्य के अंदर अपने लोगों को छुड़ाने की ऐसी तमन्ना है, how much more God? फिर कितना बढ़कर परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए रखता He's not willing that one sinner should die है। वो तो ये नहीं चाहता in his sins. कि एक मनुष्य भी पाप में मर जाए, So he has made a plan. इसलिए उसने योजना बनाई। But remember first, परंतु एक बात को पहले याद रखें, a captive is a person एक whose बंधुआ, ability to move or act freely is limited. एक बंधुआ जिसे बंधुआई में रखा गया है, ऐसा व्यक्ति है जिसके चलने फिरने और सब काम करने को सीमित कर दिया गया है। He is kept in a space or a prison वो किसी ऐसे जगह में या कैद खाने के उस चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, usually held by the enemy. सामान्य तौर पर दुश्मन उनको पकड़कर ऐसे बंधुआ बनाता है। You don't like even our wild animals to be kept in small cages. यहाँ तक कि जंगली जानवर भी कभी नहीं चाहते कि उन्हें छोटे पिंजड़े के अंदर कैद कर रखा जाए। At least now some people have come up and they've made them to release them और अच्छी into बात open है, spaces. आज कुछ ऐसे लोग भी उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने इन जंगली जानवरों को इन छोटे पिंजड़ों से निकालकर खुले स्थान में आजाद रखने के लिए काम किया है। Otherwise, just by 10 by 10 or cage. अन्यथा एक छोटा सा 10 बाय 10 के एक पिंजड़े के अंदर वो जानवर रहता था। You locked up a big tiger. एक बड़े शेर को लोग ताला में बंद करके पिंजड़े के अंदर रख देते थे। That is captivity. इसे कहा जाता है किसी को बंधुआई में रखना। He can't do what he wants. वो जो चाहता है मन में उसे नहीं कर सकता है। Usually man does not become a captive by his own will. सामान्य तौर पर मनुष्य अपनी मर्जी से बंधुआ नहीं बनता है। He is taken by force. वो दबाव पूर्वक किसी और के द्वारा ले जाया जाता है। He is against his will. उसकी मर्जी के खिलाफ कोई ले जाता है, Or he is snared into the trap of the enemy. या दुश्मन के किसी फंदे में अनजाने से वो आकर फंस जाता है। So Israel went into captivity many times. इज़राइल भी कई बार अपने इतिहास में अलग अलग देशों की बंधुआई में गया है। They were forced to leave their own nation. वे अपने राष्ट्र को त्याग कर निकलने के लिए बाध्य किए गए। They went into foreign lands वे विदेशी और पराये देशों में जाकर रहे to serve their enemies. अपने दुश्मनों की सेवा करने के लिए। In other words, captivity would mean slavery. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बंधुआई शब्द का अर्थ गुलामी भी है, Where we have no power of our own. जहां पर गुलाम के पास अपनी कोई अधिकार नहीं। You got to do what your master has to say. आप गुलाम को वही काम करना है जो आपका मालिक बोलता है। You cannot defend yourself. आप अपनी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। You have no voice to fight for your rights. आपके पास आवाज नहीं है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। This is a captivity. इसे बंधुआई कहते हैं। There are different ways the devil would like to ensnare us. अलग अलग तरीके हैं जिससे शैतान किसी जन को फंदे में फंसाना चाहता And once he है, ensnares us, he'll bring us into bondage. और एक बार फंसा ले तो वो उसको जकड़ना चाहता है बंधन में। Most of the people अधिकतर लोग are deceived and ensnared by the devil. वे धोखा शैतान के द्वारा धोखा खाकर वे शैतान के ही फंदे में आ जाते हैं। So got to look out and watch out. इसलिए सावधान रहना, चौकन्ना रहना जरूरी है। It is God's will to bless you. परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे लिए तुमको
तो धन्य आशीष देने की Some है। people say, no, this is God's will for me to suffer. कुछ लोग ऐसा बोलने लग जाते, प्रभु की यही मर्जी है कि मैं दुख उठाऊं। After suffering, God will take you out. वो दुख That is there. दुख उठाने के बाद में परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा, वो बात वहां है। But bondage is something else. लेकिन बंधुआई कुछ और चीज है। Your spirit is bound. आपकी आत्मा जहाँ बांध दी गई, Your soul is bound. आपका प्राण मानो बांधा गया You can है। be free physically, आप शरीर से तो बंधे नहीं है, bound in your mind, लेकिन दिमाग से आप बंधे हुए, जकड़े हुए। bound in your spirit, आत्मा आपका जकड़ा हुआ bound in है, your soul. प्राण जकड़ा हुआ है। You do things which are dictated by the devil. आप उन कामों को करते हैं जिसको शैतान आपको करने के लिए बोलता है। The things you don't want to do, you do. जो काम आप अंदर से करना नहीं चाहते, वही कार्य आप कर देते You don't हैं। want to fight, but you fight. आप लड़ना कभी नहीं चाहते, लेकिन आप लड़ पड़ते हैं। You don't want to abuse, you abuse. आप गाली बकना नहीं चाहते, किंतु आपके मुंह से गाली निकल जाती For है। everything is over, then you regret. और जब सब कुछ हो जाता, उसके बाद बैठकर आप बहुत खेदित होते हैं। Why did I ever do this? मैंने मुझसे ये काम कैसे हो गया? You're bound, friend. मित्र, आप चूंकि बंधुआई में हैं, God wants to deliver you. परमेश्वर उसी से आपको छुटकारा देना चाहता है। You don't blame your people. आप लोगों को उस काम के लिए दोष ना दें। Don't blame yourself. अपने स्वयं को भी दोष ना दें, There's an enemy. क्योंकि वो दुश्मन का काम है। He's having purpose in your life. वो आपके जीवन के लिए कुछ योजना बना रहा है। So Paul writing to Timothy says, इसलिए पौलुस तिमुथियुस को पत्र लिखकर बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter, दूसरा तिमुथियुस और उसके दूसरे अध्याय में, and he's talking about a person being ensnared by the devil. और वो एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो कि शैतान के द्वारा जो बंधुआई में लाया गया है। If you turn to 2 Timothy 2nd chapter verse 26, यदि आप दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़ें, you'll find there, वहां पर लिखा हुआ है, it is written like this. यहाँ पर 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है। Maybe if you read from verse 25 onwards. यदि हम 25 से ही उसे पढ़ लें तो अच्छा होगा। In meekness instructing those who oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। See, that they might recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. और उसके इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Amen. So what he's giving a very clear-cut picture. वो बहुत ही स्पष्ट चित्रण यहाँ कर रहा है। If you got into drugs, that is not you, it's the devil who enticed you. यदि आप किसी प्रकार के नशे के आदी हो गए हैं, वो आपने ही, शैतान ने आपको धीरे धीरे उसमें फंसाया है। He got you captive. उसने आपको बंधुआ बना लिया। Now you can't do without it. अब आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाते। You hit the bottle. आप नशा करते, शराब पीते। For some time you think you're okay. और कुछ समय तक आपको ये लगता है कि कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। But then in your quiet times you think, लेकिन आप अपने एकांत के समय में सोचते हैं, how can I get rid of this? मैं कैसे इस चीज सबसे मुक्त हो जाऊं। Ruin my family, ruin my children, ruin my finance. परिवार को, बच्चों को, अपनी घर की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया Ruin the है। peace in the house. घर की शांति को बर्बाद कर दिया You're है। ensnared, become captive to the devil. आप फंदे में फंसा कर शैतान के द्वारा बंदी बनाए So गए। Paul is saying, इसलिए पौलुस बोलता है so don't be hard on them. कि ऐसे लोगों को के ऊपर में कठोरता से पेश मत You आओ, give them the truth. परंतु तुम उनको सत्य को बताओ। They will come to repentance. वे लोग मन फिराव यानी कि पश्चाताप के अनुभव में आए। So one of the ways to get out is repent. एक तरीका इन बंधुओं से निकलने का वो है पश्चाताप करना, Realize एहसास करना we are sinners. कि हम पापी हैं। Realize इस बात को एहसास करना, we need deliverance. हमें छुटकारा चाहिए, Then deliverance will come. तब छुटकारा आएगा। And the deliverance will come by the word of God. और छुटकारा परमेश्वर के वचन से आएगा। Amen. Amen. Give them the truth. उन्हें सत्य दो। When they acknowledge the truth, जब इस सत्य को मानेंगे, they will recover themselves वे स्वयं छुटकारा पाएंगे of the snare of the devil, शैतान के फंदे से छूट जाएंगे, who are taken captives at his will. जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए किए गए हैं। You see, devil has a
plan to captivate. देखिए, शैतान के पास में लोगों को गुलाम बनाने का योजना है। Temptations. उन्हें लालच देता, परीक्षा में डालता, Show them the things of the world दुनिया की चीजों का प्रलोभन देता है and ensnare them. और धीरे से फंसा लेता है, Then ruin them. उसके बाद उन्हें नाश करता है। For sometimes they think it's going okay. कुछ समय तक उस मनुष्य को तो लगता है कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, But सब then he begins to tighten his grip. उसके बाद धीरे धीरे शैतान अपनी जकड़ को मजबूत करता है। That's why in Hollywood and Bollywood people commit suicide. और इसलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे जगहों में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। After having fame and money, सारा धन और प्रसिद्धि पाने के बाद भी, applause of people, दुनिया की प्रशंसा मिलने के बाद भी, still you find yourself lonely. तो भी आप अपने आप को अकेला पाते हैं। Jesus understands. यीशु मसीह है मनुष्य समझता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। There are others. वहां दूसरे भी हैं, Captivity comes upon people. लोगों के ऊपर जहां बंधुआई आ जाती है। 2 Timothy, दूसरा तिमुथियुस के 3rd chapter, तीसरे अध्याय में reading verses 5 and 6. और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ते हुए He's talking about people. वैसे लोगों की वहां पर बात कर रहा They है have a form of godliness, जिनके पास तो भक्ति का भेष है, deception, धोखा है, लेकिन hypocrites. वो कपटी हैं। They have a mask on them, उनके चेहरे में मुखौटा वे लगाए हैं, but inside परंतु अंदर से they spew death. वे मृत्यु को जैसे उगलते हो। It says here, यहाँ लिखा है, having a form of godliness, denying the power thereof, from such turn away. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। And then he goes on to say, आगे कहता है, for of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts. इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. हमेशा सीखते तो रहते परंतु कभी सत्य के ज्ञान में नहीं आ पाते हैं। So the devil says, इसलिए शैतान उन्हें जकड़ता है। there are people who ensnare you. लोग हैं जो कि फंदे में फंसाए गए, Meaning devil uses people. और लोग माफ करें, शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है दूसरों को फंसाने के लिए। So Paul is warning Timothy, पौलुस तिमुथियुस को चेतावनी दे रहा है, be careful of these men. ऐसे लोगों से सावधान रहना। He names 2 of them also. वो कुछ लोगों का नाम लेकर उन्हें बताता है। If you read the further verses, you'll find that यदि आगे की आयतों को आप पढ़ेंगे तो उनके नाम आपको मिल जाएंगे। they were ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. हमेशा सीखते तो रहते किंतु सत्य के ज्ञान में वे कभी आ नहीं पाते, Because क्योंकि they are only there to deceive people. वे वहां पर लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं। And they enter into houses, वो घरों में दबे पांव घुस जाते creep into houses. और दबे पांव घुस जाते हैं, And we think they are religious. और हमको लगता है कि वो धर्मी लोग He's हैं, better than our pastor. वो हमारे पास्टर से भी ज्यादा अच्छा आदमी हैं। Pastor is very crude and rude. अरे पास्टर तो बड़ी कठोरता से बोलते But he हैं, is so gentle. परंतु ये देखो कितना शालीनता से बात करता है। Beware. ओ खबरदार हो जा, Beware of those soft words. ऐसे मुलायम शब्दों से सावधान हो जा। Maybe deception behind it. हो सकता उसके पीछे धोखा है। Now don't think that every soft person is a deceiver. अब ये ना सोचने लग जाए कि हर एक अच्छा बात करने वाला व्यक्ति धोखा देने वाला Let है। God's spirit convict you, control you. परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करने Let's पाए। ask God for discerning spirit. प्रभु से मांगे मुझे परख की आत्मा दे। So what does the evil spirit do? दुष्ट आत्मा क्या करती है? Ensnares us. लोगों को फंदे में फंसाती है। To control, they take control of our thoughts. हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए, To control of our mind. हमारे मनों को जकड़ने के लिए, And compel us to do those things which are not right. और ऐसी चीजों को करने के लिए वो हमें बाध्य करती जो कि अनुचित है। The scripture says, वचन कहती when a है demon man gets possessed, जब एक आदमी दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित हो जाता, Holy Ghost doesn't possess anybody. ध्यान रहे पवित्र आत्मा किसी को ग्रसित नहीं करता है। He indwells us. पवित्र आत्मा वास करने आता है, But demons, लेकिन दुष्ट आत्माएं they possess. वो किसी आदमी को
उसके मर्जी के खिलाफ जकड़ती हैं। They will do things they don't want to do. और वो आदमी ऐसे ऐसे काम करने लगता है जो वो करना नहीं चाहता। Cut them themselves. वो अपने आप को भी काटता, घायल करता Destroy है। their own body. अपने देह को तब वो नाश करने लग Destroy जाता है। others. दूसरों को बर्बाद करता, Kill. हत्या करता, Hurt people. लोगों को चोट पहुंचाता है। That's his job. ये उसका शैतान का काम है। So many of people are in the jail. बहुत से लोग आज जेल में हैं। They also think sometimes, वे भी कभी कभी सोचते हैं, how did I do it? मैंने वो काम क्यों कर दिया। That spirit, that evil spirit, वो दुष्ट आत्मा made them to do it उनको वो काम करने के लिए बाध्य किया, because they were enslaved. क्योंकि वो गुलामी में थे। Evil men बुरे लोग and women और स्त्रियां enslaved. वे गुलाम बनाते। These are they creep into houses. ये ऐसे लोग हैं जो दबे पाओ घरों में घुसते हैं। Jude 4th verse says, यहूदा और उसकी 4th आयत में लिखा है, for there are certain men crept in unawares who were ordained to condemnation. क्योंकि कुछ लोग बहुत अनजाने में वहां पर प्रवेश कर गए जिनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी। They are in the church. वे कलीसिया में तो हैं, They love to feast with you. वे तुम्हारे साथ में भोजन और सब जगह आए। Their eyes are filled with adultery. उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हुई। They are not. They are doomed for eternal hell. वे अनंत नरक के लिए वो ठहर चुके, But still they want to be there तो भी वे वहां पर लोगों के बीच रहना चाहते, to take away people from God. लोगों को ताकि परमेश्वर से अलग कर लें। Captivity बंधुआई, to habits. आदतों के गुलाम। You don't want to smoke, आप धूम्रपान नहीं करना चाहते, and yet you light up another one. तो भी फिर भी आप दूसरा एक और फिर से जला लेते, सुलगा लेते। You make up your mind, you don't do it again. आप अपने मन में निर्णय लेते हैं कि अब से मैं इसे नहीं करूंगा, And you fall again. लेकिन फिर एक दिन आप उसमें गिर पड़ते। You pump in drugs into your veins. आप नशे को अपने शरीर के अंदर डालते And next time you say, I won't do it. और कहते अगली बार आज के बाद मैं नहीं करूंगा। Still go away. फिर आप लौट कर उसी में चले जाते। Some are controlled by fear. कुछ तो डरा कर नियंत्रित किए जाते, They are captivated in fear. वे भय से नियंत्रित किए जाते हैं। Everything is fearful. हर चीज उनके सामने डरावनी You है। cannot sleep at night. वो रात को सो नहीं पाते। You're afraid the night will come and what will happen? वो डरते हैं कि रात होने लगी है, अब क्या होगा। I can't sleep. मैं सो नहीं सकता। Keep the lights on. वो लाइट को जलाए रखो। Fear. भय, Fear reigns. भय राज करता। That's not of God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं। God will deliver you this day. परमेश्वर आज के दिन तुझको छुटकारा देगा। Hallelujah. हालेलुया। You will sleep well. ओ तू आज आराम से सो सकेगा। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Some people कुछ लोग are captivated with anger. वे क्रोध के जकड़ में हैं। Everything they are angry. हर चीज में वे क्रोधित हो जाते। Everybody they are angry of. हर लोगों पर क्रोधित हो जाते। Everything they do is with anger. हर चीज जो वो करते क्रोध से करते हैं। The reply is always bad. उनका जवाब भी हमेशा बुरा होता। Captivated. वे बंधुआई में है। You think, how can I get rid of this anger? वो कभी सोचते मैं कैसे इस क्रोध से निजात पालूं। God will परमेश्वर करेगा, set you free. तुझको आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Some are captivated in lust. कुछ तो लालसा के बंधुआई में है, They cannot come out of it. वे उससे निकल नहीं पाते। They try and fall again. वे यत्न करते फिर गिर पड़ते। In your own strength you can't do आप that. अपनी ताकत से उससे नहीं कर पाएंगे। God is able to set you free. परमेश्वर किंतु तुझे आजाद कर सकता है। Amen. आमेन। God anointed people. परमेश्वर ने लोगों का अभिषेक किया। God anointed people. परमेश्वर ने लोगों के ऊपर अपनी आत्मा दी। When the Spirit came, और जब पवित्र आत्मा लोगों पर आया, such power, ऐसी समर्थ आई, deliverance came. छुटकारा आने लगा। The scripture says, वचन में लिखा है, God began to move Samson. परमेश्वर शिमशोन नाम के आदमी को ले जाने लगा। The Holy Ghost used to come upon him. पवित्र आत्मा उस पर उतरता था Began to move him. और उसको लेकर चलता। Hallelujah. हालेलुया। One man. एक अकेला आदमी
was bringing deliverance to Israel. वो पूरे इज़राइल देश में छुटकारा ला रहा था। One time, एक समय it says the Spirit of God moved him and began to move him at times from Dan to Zorah. और लिखा है दान से लेकर जोरह तक परमेश्वर की आत्मा उसको लेकर चलती थी। What a word. क्या वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। One time he was confronted with a lion. एक बार उसका सामना एक शेर से हो गया। He rent him as he would rent a kid. वो ऐसे उस शेर को फाड़ दिया जैसे एक भेड़ के बच्चे को। But before those verses, परंतु उन वचनों के पूर्व it says like this. वहां ऐसा लिखा है, The Spirit of God came mightily upon Samson. परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ शिमशोन पर उतरी। He's mighty. वो सामर्थी आत्मा है। Your situation may be like a lion. आपकी परिस्थिति एक शेर के समान सामने होगी। You can't confront, you're afraid. आप उससे सामना नहीं कर पा रहे, डर रहे। The Spirit of God परमेश्वर की वो सामर्थी is not your आत्मा, advocate. वो किसी प्रकार से डरने के लिए नहीं है। It's not your advocate in the court. वो कोर्ट में आपका वो एडवोकेट नहीं। He's not going to give you victory. वो व्यक्ति आपको विजय नहीं देगा। He's not your financer either. आपके धन आपको आजादी नहीं देंगे। It's not your boss. आपका बॉस आपको आजादी नहीं The देगा। Holy Ghost will come upon you. परंतु जब वो सामर्थी पवित्र आत्मा आएगा, You will tear situations आप परिस्थितियों को ऐसे तोड़ेंगे which were trying to block your way. जो परिस्थिति तेरे सामने रुकावट बनी है। Samson is going. शिमशोन तो जा रहा, The lion is against him. उसके सामने रास्ता शेर रोक रहा। You can't stop my road. ओ तू मेरे रास्ते को रोक नहीं The सकता। Spirit of God परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा came upon him mightily. उसके ऊपर बड़ी सामर्थ के साथ आई He tore the lion कि into two. उसने शेर को पकड़कर ऐसा फाड़ दिया। Amen. आमेन। One time एक समय they caught him. उन्होंने शिमशोन को पकड़ लिया। They said, we won't harm you, but we will tie you up. उन्होंने कहा हम तुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, हम तुझे बांधना That you चाहते read in हैं। Judges 14:19. और न्यायों की किताब 14 अध्याय में आप उसे पढ़ते हैं। It says, वहाँ लिखा है Samson agreed. शिमशोन तैयार हो गया। They tied him and they brought him to a certain city. उन्होंने उसे बांध कर एक नगर में ले आए They came to Askelon. और Askelon. एश्केलोन में ले आए And they said, और उससे कहा now the enemy is on you. दुश्मन अब तेरे ऊपर है। They thought they got him. और उनको लगा कि इस बार वे उसको पकड़ लिए। Again this Bible says, फिर से बाइबल कहती है Spirit of God came mightily upon him. परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ शिमशोन पर उतरी And he broke those ropes as if they were burnt flax. और उसने उन रस्सियों को ऐसा तोड़ दिया जैसे कि जली हुई धागे को कोई तोड़ देता है। One time he killed 30 men. एक बार उसने 30 दुश्मनों को मार दिया। One time 1,000 men single-handed. एक बार तो अकेले ही 1000 पुरुषों को मारा। This is how powerful the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ इतनी जबरदस्त है। Why am I telling you? मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? Take heart. आप दिल से तैयार हो जाएं। God has a plan for your deliverance. परमेश्वर के पास आपके छुटकारे के लिए योजना है। Hallelujah. हालेलुया। He delivers by his own power. वो अपनी सामर्थ से उनको छुटकारा देता है। The scripture says, वचन कहती है Pharaoh said, I will not let these people go. फिरौन ने कहा मैं इन इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। And again God said, फिर through his बार servant, बार परमेश्वर अपने दास के माध्यम से बोलता था let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। You are God's child, friend. दोस्त आप परमेश्वर की संतान हैं। God, when God says, जब परमेश्वर कुछ बोलता है He'll tell the devil, let my people go. वो शैतान को बोलता है मेरे लोगों को जाने दे। Maybe not for the first time, second time. हो सकता है पहली दूसरी बार शैतान नहीं करना चाहे, One time He will come, you will be delivered. लेकिन वो समय आएगा जब तुझको छुटकारा मिल जाएगा। God delivers through His angels. परमेश्वर अपने दूतों को भेज कर लोगों को बचाता है। He delivered Peter and the disciples from the prison house उसने पतरस और चेलों को कैद खाने से निकाल दिया by sending His angel. अपने स्वर्गदूतों को भेजकर। Psalm 34:7 says, भजन संहिता 34 और उसका 7 बोलता है the angel of the Lord encamps round about them that fear Him. परमेश्वर का दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहता जो उसके भय मानते हैं। And He delivereth them
और वो उनको बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। What do you think? आप क्या सोचते You're a हैं? privileged person. आप एक बड़े सौभाग्यशाली As a व्यक्ति believer, हैं। विश्वासी होने के कारण You have an angel of God. आपके पास परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत है। If there are 5 believers, there are 5 angels. यदि वहाँ 5 विश्वासी है तो वहाँ 5 स्वर्गदूत जरूर हैं। Maybe more. और संभव है और अधिक। God has no problem. परमेश्वर के पास कोई समस्या He has नहीं। millions of them उसके पास करोड़ों की संख्या में वो हैं। by your side. आपके अगल बगल The angel of the Lord परमेश्वर का Hallelujah. दूत हालेलुया encamps. वो छावनी किए रहता है। He's put a tent. उसने तंबू लगाकर छावनी बना दी He's है। there at your door. वो तेरे द्वार में बैठा He's there with है। your children. वो तेरे बच्चों के संग बैठा है। He's there when you go to office. जब तू ऑफिस जाता वो वहां पर है। God's provision परमेश्वर का प्रावधान है of deliverance छुटकारे का is through his angel. उसके दूतों से वो देता है। He delivered them. वो उसने उनको छुटकारा देकर So many निकाला। times from accidents, कितने बार दुर्घटना होने से बचाया। from evil men and evil women. बुरे पुरुष और स्त्रियों से तुझको बचाया। The angel delivered. स्वर्गदूत ने बचाया है। Sometimes you almost fell. कभी कभी तो ऐसा लगा लगभग तू गिर ही गया, He was there to help you out. लेकिन तुझे खड़ा करने वो वहां पर था। God uses his servants to deliver. परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करता छुटकारा देने के लिए। Elijah, Elisha, and other prophets. एलिया और एलीशा और दूसरे नबी लोग They were men who brought deliverance to Israel. वे ऐसे लोग थे जिन्होंने इजराइल देश के अंदर छुटकारा लेकर आए। They will expose the strategy of the kings. वे राजा के रणनीति को बता दिया करते थे They often brought victory to Israel. और ऐसा करके इजराइल देश के लोगों के लिए आजादी लाए। That's why, इसलिए well, you are one man of God. यदि आप परमेश्वर के एक जन भी हैं, The scripture says, वचन कहती even है when Elijah was taken up into heaven, जब एलिया का स्वर्ग आरोहण हो रहा था, Elisha said like this, एलीशा ने उससे देखकर पुकार के my कहा, father, हे मेरे पिता, oh, मेरे all the पिता, chariots and horsemen of Israel, ओ इजराइल के रथों और घुड़सवारों, you are the strength of Israel, इजराइल की तू बल था एलिया, you are the defense of Israel, ओ तू तो इजराइल की सुरक्षा था, you are the deliverer of तू Israel. इजराइल का छुटकारा देने वाला था। So value the man of God परमेश्वर के भक्त जन का मूल्य समझें when they are alive. जब वे जीवित हैं। Don't keep this for the end to say, वो इसे अंत के लिए रखना छोड़ें, ये कहने के लिए। amen. आमेन। Listen friends, सुनिए दोस्तों, prayer brings deliverance. प्रार्थना छुटकारे को लाता है। God gives deliverance. परमेश्वर ने छुटकारा दिया, He sends his angels to deliver us. उसने अपने दूतों को छुटकारा देने भेजा, He uses men to deliver us. वो मनुष्यों को छुटकारा देने भेजता है। Prayer. प्रार्थना, Hallelujah. हालेलुया। Don't cease to pray. प्रार्थना बंद ना करें। The church prayed. कलीसिया ने प्रार्थना की। Peter was put in prison. पतरस कैद खाने में डाला गया, Next day to be killed. अगले दिन हत्या किए जाने के लिए। Church prayed to God for Peter. रात में कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। God heard that prayer. प्रभु ने उन लोगों की प्रार्थना सुन ली। Deliverance came. छुटकारा पतरस के लिए आया। Hezekiah prayed. हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, Deliverance came. छुटकारा उसे मिला। Jehoshaphat prayed. यहोशाफात राजा ने प्रार्थना की, Deliverance came. छुटकारा उसके लिए आया। Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करते रहो। Don't give up in prayer. प्रार्थना में थको नहीं। You may not be a preacher, हो सकता आप कोई प्रचारक नहीं है, but you have a ministry God has given. परंतु आपके पास में एक सेवकाई परमेश्वर की ओर से मिली है। Deliverance will come by the blood of Jesus. छुटकारा यीशु मसीह के लहू से भी आता है। The scripture says, वचन कहती है, and they overcame the devil और उन्होंने जय पाई दुश्मन by the शैतान blood of the पर, Lamb, मेमने के लहू की सामर्थ्य से by the word of the testimony. और अपनी गवाही के वचन से शैतान पे जय पाया। You know, Israel was delivered. आपको मालूम है इजराइल छुटकारा पाया। The last plague, आखिरी विपत्ति जब मिस्र में the आई plague of death, और वो विपत्ति मौत थी, they were told to apply the blood of the Lamb on the door. उन इस्राएलियों को कहा गया था अपने घर की चौखट में बगल में उस लहू को लगाना, And the angel of death will not enter in. और मौत का जो दूत है वो प्रवेश नहीं करने पाएगा। That night, उस रात को none of the Israelites died. उनमें से कोई भी इजरायली नहीं मरे।
God brought a deliverance. परमेश्वर ने एक जबरदस्त छुटकारा उस रात को दिया। The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का वो खून, That precious, precious blood of Jesus यीशु मसीह का बहुमूल्य बेशकीमती लहू not only cleanses us from all sin, न केवल हमें हर एक पाप से आजाद करता है, He will give you deliverance न केवल शुद्ध करता परंतु छुटकारा देता है from all the works of the enemy. शैतान के दुश्मन के सारे कामों से छुटकारा। What I mean here, मैं क्या यहाँ पर कह रहा हूँ, He will give you the overcoming power. वो आपको उस पर जय पाने की सामर्थ्य देगा। That habit, that thing that troubles you, उस आदत के ऊपर, उस परिस्थिति के ऊपर जो तुझे सताती है, the overcoming power वो जय पाने वाली सामर्थ्य देगा। is in the blood of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के खून में है। It is alive and flesh वही today. आज भी Hallelujah. जीवित है, आज भी वो तैयार और उसका खून ताजा He shall है। never lose His power. वो खून अपनी सामर्थ्य को नहीं खोएगा। Glory to God. हालेलुया। Amen. आमेन। Now and forever. अब और सदा के लिए He's never lost His power, never will He lose His power. वो उसने अपनी सामर्थ्य को खोया नहीं है, ना खोएगा। Blood of Jesus यीशु मसीह का रक्त cleanseth us from all sin. हमें हर एक पापों से आजाद करता उसका खून। Blood of Jesus sets us free and gives us victory. यीशु मसीह का खून हमें आजाद करके जय देता है। Amen. आमेन। Deliverance will come छुटकारा आएगा in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आएगा। Go and preach the जाओ gospel. सुसमाचार को प्रचार करो। In my name, मेरे नाम में cast out devils. दुष्टात्मा को निकाल लो। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Heal the sick in my name. मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, यीशु ने कहा। Set the captives free. बंधुओं को आजाद करो। That is God's desire. ये परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए। Jesus Himself sets people free. यीशु मसीह स्वयं लोगों को आजाद करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Whom the Son of Man sets free जिसे मनुष्य का पुत्र आजाद करे is free indeed. वो निश्चित तौर से आजाद है। You read the Gospels. आप सुसमाचारों को पढ़े। He went about from village to village, city to city, वो गांव से गांव, नगर से नगर गया preaching the glad tidings, और खुशखबरी प्रचार करता हुआ गया। healing the sick, बीमारों को चंगा करता रहा। setting those free who were bound by demons. जो दुष्टात्माओं से बंधे थे उनको आजाद करता हुआ चला। You keep on scolding that child, nothing happens. आप उस बच्चे को डांटते रहते, कुछ नहीं होता। He needs deliverance. उसे छुटकारा चाहिए। Pray for deliverance. छुटकारे के लिए It प्रार्थना will करें। come in the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगा। Now don't go and stand in front and pray like that. और आप किसी के सामने जाकर खड़े होकर प्रार्थना ना Unless he's करने demon लगे। possessed. जब तक कि वो दुष्टात्मा ग्रसित ना हो। You overcome them in the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर जय पाएं। He's anointed me to preach the gospel to the poor. उसने मेरा अभिषेक किया है कि बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं Heal the brokenhearted. और टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए। God wants to heal your broken heart. परमेश्वर जो टूटे दिल वाले उनको आजाद करना, चंगा करना चाहता है। You don't have anybody to share your sorrows with. आप अपने टूटे मन को किसी के साथ में बांट नहीं पाते हैं। You can come to Christ. आप यीशु मसीह के पास आकर बताएं, Pour your heart before Him. अपना दिल उंडेल कर यीशु को बताएं। He will heal your broken heart. वो तेरे उस टूटे दिल को फिर चंगा कर देगा। Preach deliverance to the captives. बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार। There are so many young girls who have been taken captive in prostitution. कितनी जवान लड़कियां हैं जिसे वेश्यावृत्ति में ढकेला जा रहा। There are many kidnapped people. बहुत से लोगों का अपहरण किया जा रहा। You can read their relatives giving a photograph and they know where they've gone. और आप पाते हैं उनके रिश्तेदार और घर के लोग उसका चित्र यहाँ वहाँ लोगों को दिखाते फिरते। Even whatever they have, they want to give so that the child will come back. उनके पास जो भी है वो देना चाहते ताकि कोई उनके बच्चे को ढूंढ कर ले आए। They'd been taken captive by somebody. किसी और ने गुलाम बना कर ले गया। Jesus said, यीशु ने कहा, set them free. ऐसों को आजाद करो। Pray for those organizations who are working towards this. ऐसे संगठन जो उनके मध्य काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो।
Support these organizations. ऐसे संगठनों को आप मदद करो, Pray for them उनके लिए प्रार्थना करो, and pray for deliverance. छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। God is able to deliver them. परमेश्वर उन्हें छुटकारा देने में योग्य है। When corona virus was spreading, जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था, they had sent these girls away in many places. बहुत से स्थानों में उन लोगों ने वेश्यालयों से उन लड़कियों को आजाद करके जाने दिया, Because nothing was happening for them. क्योंकि वहां बचाने वाला कोई नहीं था। God will do something. परमेश्वर कुछ ऐसा करता है, That deliverance will come to them. छुटकारा उन तक पहुंचने के लिए। Children are kidnapped. बच्चों का लोग अपहरण करते, Bible says बाइबल कहती है God wants to open prison doors. परमेश्वर कैद खाने को आजाद खोल कर आजाद करना। There are many innocent lives in the prison house. बहुत से ऐसे लोग कैद खाने के अंदर हैं, They call on God for deliverance. वे अपने छुटकारे के लिए प्रभु के नाम को पुकारते Pray हैं। for the human rights organizations. मानवाधिकार के संगठनों के लिए भी प्रार्थना करें। Somehow किसी तरह से there will be deliverance. वहां ऐसे लोगों के लिए आजादी आ सके। God is able to do this. परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। We had gone to the jail once and preached, एक समय हम जेल जाकर वहां प्रचार करने का अवसर मिला and we said, और हमने कहा God can work a miracle. परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, Greatest miracle is saving of your soul. और सबसे बड़ा चमत्कार आपके आत्मा का उद्धार है। And next, और अगला what you want is deliverance from जो you. आप चाहते हैं कि मैं इस कैद खाने से आजाद हो जाऊं। And during this corona time, और उसके बाद ये कोरोना का जो समय आया, about 300 prisoners were left. करीब 300 कैदियों को आजाद कर दिया गया, Go home. वापस घर लौटा दिया गया। You don't know how God works. आप नहीं जानते प्रियो, परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। Pray, enter into those brothels in prayer. उन वेश्यालयों में और इन स्थानों में जो लोग काम करें उनके लिए प्रार्थना करें। Speak words of deliverance. छुटकारे का वचन उनके लिए बोले। Let my people go. मेरे लोगों को जाने दे, To open prison doors. कैद खानों को खोलने के लिए। To proclaim liberty to those who are bound. वे जो बंदी है उनके छुटकारे का सुसमाचार। Recovering of sight to the blind. जो अंध हैं वो दृष्टि पाने का सुसमाचार। To set at liberty all those who are bruised. और कुचले हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार। You and I won't know आप और मैं नहीं जान पाएंगे the suffering people are going through. कि किस प्रकार की पीड़ा से आज लोग गुजर रहे हैं। Only the Holy Ghost can help us केवल पवित्र आत्मा ही हमारी मदद कर सकता है to pray for them. कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। Only prayer केवल प्रार्थना ही is not enough. काफी नहीं है, Do something कुछ ऐसा भी करें that will bring deliverance to people. जो लोगों के जीवन में छुटकारा लाए। He's setting me free. वो मुझको आजाद कर रहा है, This Holy Ghost power. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, He's setting me free this very hour. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त आजाद, It's flooding my soul. वो मेरे प्राण में भर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we believe God for a miracle? आइए हम प्रभु पर विश्वास करें ऐसे ही चमत्कार के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Jesus' name. And the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul, all will be changed, and your glory revealed. When the Spirit takes over your soul. Even as we sing it one more time, जैसे एक बार फिर से हम इसे गाएंगे,
Believe God for a miracle. आप विश्वास करें परमेश्वर पर एक चमत्कार के लिए। Nothing shall be impossible with God. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। That struggle will be over. वो संघर्ष जिससे आप गुजर रहे हैं, The Holy Ghost will help you. वो चला जाएगा, पवित्र आत्मा मदद करेगी। Heaven is waiting for you. स्वर्ग तेरा इंतजार कर Because रहा this is His desire. क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है That you might have life. कि तू जीवन पाए And have more abundant life. और जीवन बहुतायत से पाए। Don't give up. हार मत मान। Suicide is not the answer. आत्महत्या उसका जवाब नहीं है। Jesus Christ is your answer. यीशु मसीह तेरी सारी समस्या का जवाब है। Hold on there. वहां पर रुके रहे। Help is coming from heaven. स्वर्ग तेरे लिए मदद भेज रहा है। Jesus' name. Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, in the matchless name of Jesus, यीशु मसीह के तुल्य नाम में I speak deliverance to these people. मैं इन लोगों के जीवन पर छुटकारे को बोलता। Do not know what kind of bondage and captivity they are in. और जानते नहीं प्रभु हम कि वो कैसे किस्म की बंधुआई के अंदर है। You are the one who sets free. तू ही है जो उन्हें आजाद करता है। For whom the Son of Man sets free क्योंकि जिसे मनुष्य का पुत्र आजाद कर दे shall be free वो indeed. निश्चित तौर से So we आजाद है। speak the word of freedom. इसलिए हम आजादी के वचन को बोलते हैं। Like a bird from the prison bars has flown. जिस प्रकार से वो पक्षी पिंजड़े से निकल कर आजाद हो गई, Enjoy the glories of the heavens. स्वर्ग के उस महिमा का आनंद लेने, So let it be for that man, that वैसे woman. आज उस भाई के लिए, उस बहन के लिए होने पाए। Be free in Jesus' mighty name. तुम यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ। I break every chain of the enemy. मैं दुश्मन के एक जंजीर को जो तुम्हें जकड़ा Every तोड़ता हूँ। demonic force I break you in Jesus' हर mighty एक name. दुष्टात्मा की ताकत को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। Be free and be use of God. ओ तुम आजाद हो जाओ, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाओ। Bless you, Lord. प्रभु के नाम को धन्य बोलते। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Thank the Lord for this day. प्रभु का हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। If you prayed this prayer, यदि आपने इस प्रार्थना को किया है, believe God. God will do something for you. विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करेगा। Read the Bible. बाइबल को पढ़िए। Find a good church. एक अच्छा विश्वासी कलीसिया ढूंढे। A church where there is no idolatry. ऐसी कलीसिया जहां कोई मूर्तों की उपासना नहीं होती A है। church where they believe in the word of God ऐसा कलीसिया जहां पर चर्च जहां पर लोग वचन पर विश्वास करते हैं and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास You'll करते हैं। grow in that place. आप उस स्थान में बढ़ेंगे। Thank you for your prayers for us आपकी जो प्रार्थना है हमारे लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। and for your support to the ministry. और सेवकाई में जो आप आर्थिक योगदान भी करते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। We take the offering now. इस समय हम अपनी भेंटों को एकत्रित कर सकते You हैं। can put it wherever you put. जहां भी आप उसे एकत्रित कर रहे हैं वहां करें। Thank you, Jesus. He's setting me free. This Holy Ghost power. He's setting me free. This very hour is flooding my soul. He's making me whole. He's setting me free, free, free. This Holy Ghost power. Father, we ask your blessing on this offering. पिता हम तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who gave, bless them, and those who could not give, bless them too. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, जो दे ना सके उन्हें भी आशीष देना। Return them 1,000-fold, I pray. प्रभु अपने लोगों को 1000 गुना लौटा कर दे, हम मांगते हैं। May they be blessed and they may lack nothing. वे धन्य होने पाए, कोई भली वस्तु की घटी उन्हें ना हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ
and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now until Jesus comes back again. Amen. 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 God bless you all.